السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے آپ سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن بیسک کورس کے سبق نمبر 15 میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین مشریہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، جیسا کہ جیسا کہ سلائڈ روزانہ ہم اس کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں، تو آج بھی اسی مقصد سے اس سلائڈ کو رکھا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہیں جس میں کلمات ہی کلمات ہیں، تو وہ کلمات کبھی اسم ہوتے ہیں، کبھی فعل اور کبھی حرف، اتنا تو آپ کو اندازہ ہو ہی چکا ہے نا۔ تو اس وقت ہم فعل پڑھ رہے ہیں، فعل کے ساتھ ہم نے کبھی اسم سیکھا، ضمیر ہے نا، اسم ضمیر سیکھی، کبھی فعل کے ساتھ، کبھی اسم کے ساتھ اور کبھی حرف کے ساتھ۔ تو آئیے آج پھر ہم فعل ماضی، ٹھیک ہے، فعل ماضی میں سے چند مخصوص افعال وہ سیکھیں گے کہ کس وقت ان کے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم کسی فعل پہ بات کرتے ہیں اس کا صیغہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ الحمدللہ آپ سب کو ہی بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہے کہ کسی بھی فعل والے کلمات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان تین چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے: تعداد، جنس اور کلام کے اجزاء۔ یہ سلائیڈ آپ ایک دیکھ لیں، ذہن نشین کر لیں اس کو۔ ویسے مجھے امید ہے یہ سلائیڈ کی آپ کو سمجھ ہے الحمدللہ۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی، آج کا ہمارا سبق ہے ذہب اور ذہب بھی میں فرق۔ کیا مطلب؟ ذہب فعل ماضی ہے نا، ذہب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، کوئی آیت کوئی جملہ ایسا ہوتا ہے جس میں ذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یاد ہے ہم نے ذہب کا معنی کیا پڑھا تھا؟ جانا، ذہب وہ گیا، تین زبر کے ساتھ وہ گیا۔ کبھی لفظ ذہب استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ لفظ ذہب بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب ذہب اور بھی آتے ہیں جس جملے میں، وہاں پر ذہب کا معنی ہو جاتا ہے لے جانا، ٹھیک ہے۔ ذہب جانا، ذہب بھی لے جانا، یعنی جب کسی جملے یا کسی آیت میں ذہب اور اس سے تھوڑی آگے جا کے حرف بھی آ جائے، جب کسی جملے میں یا قرآن پاک کی کسی آیت میں فعل ماضی ذہب آ جائے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ذہب آ جائے اور دو تین کلموں کے فرق سے حرف بھی آئے، تو پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے لے جانا۔ جیسے یہ مثال آپ کے سامنے ہے، ذہب اللہ بنورہم۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں، صرف ذہب آگے لگائیں تو کیا معنی بنے گا؟ گیا اللہ، اللہ گیا، بنورہم۔ اب یہاں پر ذہب آیا اور ذہب اور بی کے درمیان ایک کلمہ آ رہا ہے، تو ہم نے یہی بولا جب ذہب کے کچھ آگے جا کے، ذہب والے جملے میں کچھ آگے جا کے حرف بی آئے، تو پھر ہم ذہب اور بی دونوں کو ملا کے اکٹھا ہی معنی لگائیں گے لے جانا۔ تو کیا معنی ہو جائے گا پھر؟ ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ
नूरिहिम, उनका नूर, ले गया अल्लाह उनका नूर। ठीक है। और जिस आयत में ज़हाबा का लफ्ज आए लेकिन वहां हर्फ बी इस्तेमाल ना हो, तो फिर जाना के माना में ही ज़हाबा का माना होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए आप सबको? जरा मुझे बताएं। जी। मुंतहा को हो गया, इकरा को और सबा को। जी मैम। ठीक है, जज़ाकिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। ठीक, अब ये याद रखिएगा। ठीक है, रहाबा अकेला आए, जाना, रहाबा के साथ हर्फ बी भी आ जाए तो ले जाना। उसके बाद एक और फेल है, उसको भी देखेंगे आज हम, जा आ। ठीक है, जा आ, जा आ का माना होता है आना, तो दो जबर के साथ वो आया। तो ये जा आ तीन तरह से इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। कभी किसी आयत में सिर्फ जा आ, किसी आयत में जा आ बी। जैसे पीछे अभी हमने रहाब बी का इस्तेमाल पढ़ा, ऐसे ही जा आ बी। ठीक। और तीसरी सूरत इसकी है जा आ के फौरन बाद जमायरे मुत्तसिल होते हैं। याद है ना, जमायरे मुत्तसिल, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ये ना। तो जा आ के फौरन बाद जमायरे मुत्तसिल का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो जा तीन तरह से आता है, फिर इनके तीन मुख्तलिफ मानी बन जाते हैं। जैसे जा आना, फिर दो जबर के साथ हो गया वो आया। फिर जा बी, यानी एक आयत है उसमें जा आया, जा के कुछ आगे जाके, ठीक है, उस जुमले में कुछ आगे जाके हर्फ बी आ गया, फिर माना हो जाता है लाना, लाना। ठीक है, जा बी, लाना, जा वो आया, जा बी वो लाया। जैसे ये मिसाल आपके सामने, जा बिल बैयिनाती। अब हम ये नहीं कहेंगे वो आया निशानियों के साथ, नहीं, बल्कि हमने रूल पढ़ लिया, जब जा वाले जुमले में हर्फ बी आ जाता है, फिर हम जा और बी को मिला के इकट्ठा ही तर्जमा करते हैं, वो बनता है लाया। जा भी, वो लाया, अल बैयिनात, निशानियां, रोशन दलील, रोशन दलाइल। ठीक है, वो लाया निशानियां। फिर जा जमायरे मुत्तसिल के साथ जब आता है, तब उसका माना बन जाता है पास आना। ठीक है, पास आना। जब जा के फौरन बाद जमायरे मुत्तसिल में से कोई भी जमीर आ जाए, तो ये माना बन जाता है पास आना। जैसे जा का वो आया तेरे पास। ठीक है, जा का वो आया तेरे पास। जैसे हम कहते हैं ज़ौराबा का, उसने मारा तुझे। लेकिन जब जा वाला कलीमा इस्तेमाल होता है, फेल आता है, और उसके बाद जमीर मुत्तसिल आ जाए, तो फिर माना आना नहीं बल्कि पास आना हो जाता है। ठीक है, जा आना, जा भी लाना, जा के फौरन बाद, जा के फौरन बाद जमायरे मुत्तसिल में से कोई भी जमीर, तो माना हो जाता है पास आना। जैसे ये मिसाल, जाअकुम मूसा बिल बैयिनात। अब यहाँ पर जाअकुम मूसा बिल बैयिनात, इस आयत में लफ्ज जा भी आ गया, कुम भी आ गया, फिर यहाँ भी आ गया। अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को देखें, जाअकुम मूसा, फिर माना होगा आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम। लेकिन फिर जब हम अगली बात भी देखें, बिल बैयिनात, फिर हमने ऊपर पढ़ा जा भी हो तो माना होता है लाना। तो यहाँ कुम भी आ गया तो पास का माना भी आ जाएगा। अब ये क्या माना हो जाएगा, जाअकुम मूसा बिल बैयिनात, मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास निशानियां लाए। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास निशानियां लाए। जा आना, जा भी लाना, जा अकुम
पास आना, जा आकुम, जा आकुम प्लस बी, ठीक है। ये जा आ भी है, इसका माना लाना। अगर यहाँ पर हो जाए जा आ, इसके साथ जा के साथ जमीर और साथ में भी आ जाए, फिर माना होता है पास लाना, ठीक है, पास लाना। जा आ, दोबारा से गौर करें, जा आ आना, जा आ भी लाना, जा आ के फौरन बाद जवारी मुत्तसिल पास आना। फिर जब जा आ के फौरन बाद जमीर मुत्तसिल भी होती है और आगे चल के हर्फ भी आ जाए तो माना हो जाता है पास लाना, ठीक है। अब बताइए ये पॉइंट क्लियर है? जी। जी मुंतहा बेटा बताएं। जी क्लियर है। क्लियर है, जबरदस्त, माशाअल्लाह। ठीक है, फिर अब हम इसके मिसालों की तरफ जाते हैं ताकि हमें मजीद वाज़ेह हो जाए क्या वाकई ये सबक हमें क्लियर हो चुका है। तो देखिए ये मिसालें हैं हमारे पास। ज़हब सय्यिआतु अन्नी ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। फिर जा रजुलुन मिन अक़सल मदीनती। फिर जाअकुम मूसा, फिर है जाअकुम मूसा बिल बैयिनात। जी मुंतहा बेटे आप करें माइक ओपन। जी। जी बेटा आप पहली आयत का तर्जमा लगाएं। जहाबा, जहाबा का मतलब है, जहाबा का मतलब है जहाबा अकेला का मतलब है जाना या हम्म। गया, वो गया। और सही आती, सही आती का क्या मतलब है? सही आतू तू। सय्यिआतु, सय्यिआत का माना है बुराइयां, ठीक है, बुराइयां। हम्म, ठीक है। तो होगा कि जहाबा वो गया, अ, तू बुराइयां है तो आ, आपको पता है तू। अगर फेल होता है ना, जब फेल के फौरन बाद कोई कलीमा ऐसा आ जाए जिस पर पेश आती है, ठीक है, यानी वो फेल ना हो, फेल के फौरन बाद कोई इसम ऐसा आए जिस पर पेश होती है, उस पेश का माना होता है, वो पेश होता है काम करने वाला, ठीक है। अब जाने वाला कौन है? अब हम ये नहीं कहेंगे वो गया, बल्कि हम क्या कहेंगे, वह बस सय्यिआतु। मैं बताऊं? हम्म। वो गया सही आतू। सही आतू का बता दें एक बार और मतलब। सय्यिअतुन, सय्यिअतुन इसका माना है बुराई, बुराइयां, ये जमा है बुराइयां। वो गया बुराइयों में। नहीं देखें, मैंने आपको अभी ये बताया बेटा, जब फेल होता है ना, फेल के फौरन बाद इस्म होता है पेश के साथ, इसका मतलब होता है कि ये जो काम है ना, ये इस्म कर रहा है। वो ले गया बुराइयों को। मैं भला क्या कह रही हूँ? इसम के बाद अगर कोई ऐसा तू आता है या पेश आता है किसी लफ्ज पे तो अ, तो वो बंदा काम काम करने कर। वाला वो लफ्ज होता है। अब पेश ता पर आ रही है ना, सही आत पर आ रही है ना, तो काम जी। करने वाली सही आत है। काम क्या है? जाना। बुराई। अच्छा। अबू वो गया, ठीक है। फिर वो बुराई का माना गई। नहीं लगाते बेटा, जब काम करने वाले का हमें पता चल जाता है ना कौन है, फिर वो का माना नहीं लगाते। जहाबा, अच्छा, जहाबा, बुराई गई। शाबाश, गुड। अ, अन अन्नी है, हाँ अन्नी है। अन्नी का मतलब होता है, अन्नी का मतलब, अन का मतलब आता है तो अच्छा ठीक है। अन्नी, अ, बुराई गई। अन्नी का मतलब होता, अन का मतलब होता है के बारे में। हाँ, अन का माना से भी होता है, के बारे में भी होता है, फिर जो माना सही लगे वो लगाएंगे हम। अन्नी से। अन का माना तो से हो गया, आगे ये या जमीर लगी हुई है बेटा। जी, तो उसका मतलब आ जाएगा कि हम्म। अ, वो 2 मिनट। अब वो गई, नहीं बुराई गई। अन्नी,
मुझसे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोबारा से अब बनाइए इसका माना। बुरा, मुझसे बुराई गई। हम्म, सैय्यातु जमा है ना, तो बुराइयां, बुराइयां चली गई मुझसे। शाबाश, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश की है ना आपने, तो अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बेटा नीचे वाली आयत का लगाए माना। जहबा वो गया, अल्लाह, अल्लाह, बिनूरिहिम, बिनूर, नूर होता है ना, तो आगे आखिर में लग गया है हिम, तो बिनूरी हिम होगा कि अम, अ, जमा मुजक्किर गायब होगा। तो समझ आ गई है, जहाबा वो गया, अल्लाह, नहीं, अल्लाह गया, नहीं नहीं, 2 मिनट। जहाबा वो गया, अल्लाह, अल्लाह, बिनूरी हिम, जब हम उसके, आयत का तर्जमा लगा रहे होते हैं ना बेटा, जो हमने पॉइंट सबक में पढ़ा होता है ना, उसको जहन में रखते हैं। अल्लाह के अल्लाह के नूर से गया। क्या हो गया? देखें, अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था? जिस जुमले में, जिस आयत में जहाबा आ जाए और आगे चल के हर्फ बी आ जाए, तो दोनों को मिला के क्या माना बनाना है? बिनूरी हिम, जहाबा भी आ जाएगा तो ले जाना होता है। हम्म। ले गया अल्लाह हम्म। उनका नूर। शाबाश, वेरी गुड। जब हम तर्जमा लगा रहे होते हैं ना आयात का, इसका मतलब जी। ये होता है कि इन आयात को हमने तवज्जो देनी है। जो सबक में हमने पॉइंट पढ़े हैं ना, उनको नोट करना है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा सबक क्या चल रहा है, उसके मुताबिक तर्जमा करते हैं, ठीक है? अभी आपने इस पे गौर किया ना, तो आपने बिल्कुल सही कर लिया खुद से ही, मुझे बताना भी नहीं पड़ा आपको, माशा अल्लाह। अल्लाह मजीद फजीद, बारक फी इल्मिक। ठीक है बेटा, अब समझ आई आपको? यहाँ पर था रहाबा, यहाँ भी नहीं है था ना, तो हमने जाना ही माना लगाया। लेकिन अब यहाँ पर रहाबा के साथ भी था, तो माना लगाया हमने। अल्लाह, अल्लाह गया, नहीं उसकी तरफ से गया, मतलब कि अल्लाह ले गया उनका तो फिर नूर। हमने क्या माना लगाया जहाबा भी का? जहाबा बी का मतलब लगाया ले गया। हाँ, ले गया, ठीक है। ले जाना, हाँ। चलिए, अब आप ये भी आयत पढ़ें। जा रजुलुम मिन उक्सल मदीना। अक्सल मदीना, अक्सा, अक्सल, अक्सा ठीक है। किसे कहते हैं? अगर मस्जिद हो। आपने तजवीद सीखी हो, तो आपने ये सीखा होगा कि हरूफे हल्की 6 हैं, तो वो कहाँ कहाँ से अदा होते हैं? मुस्ता हलक, अदना हलक, अक्सा हलक है। अक्सा हलक से क्या मुराद होता है? हलक का आखिरी हिस्सा, आखिरी, है ना? तो यहाँ पर भी अक्सा से मुराद आखिरी किनारा है। ठीक है। जा का मतलब है अ, वो आया या आना। जा, तो बी तो नहीं लग रहा, तो रजुलुन भी, जमाइन में से तो नहीं है रजुलुन, तो इस तरह होगा जा, ले गया, ले क्या क्यों? अ, वो आया, आना, वो आया कौन आया बेटा? है, क्या हुआ, कौन आया? वो आया। अभी देखें, अभी ऊपर क्या बात की थी हमने? जब फेल होता है, फेल के फौरन बाद इस्म होता है पेश के साथ, तो काम करने वाला वो इस्म होता है। अब यहाँ देखें, जा है, ठीक है, जा, उसके फौरन बाद रजुलुन, तनवीन है ना, तनवीन वाला कलीमा इस्म होता है, तो ये पेश की तनवीन है, इसका मतलब है काम करने वाला रजुल है। रजुल का क्या रजुल का मतलब है? माना होता है आदमी। वो आदमी आया। बेटा वो नहीं लगाते, फिर जब पता चल जाता आदमी है ना आया, कौन है, फिर वो नहीं लगाते। वो आदमी आया। हम्म। मीन का मतलब से, हम्म। उकसाई, आखिरी हिस्से से, वो नहीं, मुझे समझ आ गई, आदमी आया अ, 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 मदीना के आखिरी हिस्से से। हम्म। हम्म, ठीक है। आदमी, एक आदमी आया शहर के आखिरी किनारे से, ठीक है। बात यह है कि जो हमारे सबक का पॉइंट है ना, वो समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है?
वो जी। आपको समझ आ गया कि यहाँ जा था तो माना उसका आना था, वो आपने बिल्कुल सही बताया। यही आज का हमारा पॉइंट है, ठीक है। आगे ठीक। बताइए, जअकुम मूसा। जा का मतलब है कि वो आया, तो अगर यहाँ पे मूसा लग रहा है तो मूसा आया, कुम आगे आ रहा है, तो आ, आया मूसा तुम सबके लिए। लिए क्यों? अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था? जब जा के फौरन बाद जमाइर का इस्तेमाल होता है तो माना क्या लग जाता है फिर? पास। हम्म। मूसा तुम्हारे पास लाया। लाया किसका बेटा? उसका ये मतलब नहीं था कि बाद अगर आ जाता है, बे लग जाता है तो वो होता है जमीर के बाद पास लाना नहीं होता उसका मतलब। नहीं, अगर हो ना जाकुम साथ में भी आ रहा हो फिर होता है पास लाना। उसके बगैर, ठीक जब है, ठीक है। भी नहीं है, जा के साथ जमीरें मुत्तसिल आ रही हैं, फिर माना होता है पास आना। अच्छा, तो मूसा तुम्हारे पास आया। शाबाश, फिर बोले। मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आया। सही। तो ये मूसा से मुराद कौन है पता है आपको? मूसा अलैहिस्सलाम। हाँ बेटा, तो फिर नबी है ना, तो थोड़ा अदब एहतराम से नाम लेना चाहिए। मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आए। शाबाश, ठीक है। अगली आयत भी पढ़ें बेटा। जाकुम मूसा बिलबय्यिनात। मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आए बिलबय्यिनाती। बय्यिनात। हाँ, बैयिनात का माना होता है वाज़ेह निशानियां। बिलबय्यिनाती। मूसा अलैहिस्सलाम लाए तुम्हारे पास वाज़ेह निशानी। शाबाश, गुड। मैंने आपसे ये सारा सबक क्यों सुना बेटा? क्योंकि मुझे सही से नहीं आता था। नहीं, ये बात नहीं कि आपको सही से नहीं आता था। आना कैसे था? हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते हैं तो ही आता आना था ना। अभी तो आज हमने हाँ। पहली बार तो ये चीज पढ़ी, ठीक है। और हाँ। इसलिए ही मैंने आपसे ये सारा सुना, ताकि आज का जो पॉइंट है ना, वो मुंतहा को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। मुंतहा माशाल्लाह बहुत छोटी सी बच्ची है। मुझे बहुत खुशी होती है कि ये बहुत जल्द पिक कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। बस अब ये है, जाहिर है यहाँ 7 आयत में जरा और तरह से इसमें इसम भी आया हुआ है जो हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो इस वजह से थोड़ी बच्ची को जरा समझने में मुश्किल हो रही है, बाकी तो उसको समझ आ रही है पॉइंट्स की, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। जजाकिल्ला, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजीद। जी इकरा, आप कीजिए माइक ओपन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी इकरा, आप एक बार बताइए कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने सीखा कि अगर सहाबा के साथ हम अ, जैसे सहाबा का मतलब होता है वो गया, लेकिन अगर इसके साथ हम इसके जुमले में जिस जुमले में सहाबा आ रहा है और आगे उसके साथ बी का लफ्ज आ रहा है तो उसका मायना हो जाएगा ले गया। सही। हमने पढ़ा जा। जा के मायने है आना। तीन जबर दो हाँ, जबर के लफ्ज साथ ना हो मायने जाएगा। नहीं होता बेटा, माना होता है, ठीक है। जा का माना। चीन। जा का माना है आना। और हम्म। दो जबर तीन जबर के साथ हो जाएगा वो आया। हम्म। और अगर हम उसके साथ इसके जुमले में बा आ रहा है तो हम उसको पढ़ेंगे लाया। हम्म। और अगर जा के साथ कोई जमीर मुतस्सिल आ जाती है तो हम उसको पढ़ेंगे पास लाया। पास आना, उसके पास आया। सही। पास आया, ठीक है। और एक पॉइंट। और अगर जी अगर सहाबा के बाद जो दूसरा वर्ड इसम होगा, अगर किसी फेल के बाद दूसरा वर्ड इसम होगा और उसके आखिर में पेश होगी तो मतलब होता है काम उसने किया। शाबाश, बहुत शुक्रिया आपका। जजाकिल्ला, बारकल्लाहु फीक। जी सबा, आप कीजिए माइक ओपन। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है, आप सॉरी, ठीक है। अच्छा इकरा, आपने इसमें एक पॉइंट ये छोड़ा, उसमें जा में
मैंने आपको चार चीजें बताई हैं जा के हवाले से। जा अकेला हो, आना। जा बी, लाना। जा के साथ जमायरे मुत्तसिल, पास आना। फिर जा जमायरे मुत्तसिल प्लस बी, फिर क्या माना था? साथ लाना। पा, नहीं, पास लाना, साथ लाना नहीं बेटा। बी का माना है साथ क्या नहीं करना, ठीक है। एक लफ्ज है जा बी, इसका माना है लाना, ठीक है, लाना। जा जमायरे मुत्तसिल, पास आना। जा जमायरे मुत्तसिल प्लस बी, पास लाना। ठीक है, समझ आ रही है? अब देखे ना, यहाँ पे देख मैंने कौन सी मिसाल नहीं लिखी। ये तो होगी सादा जा की, ये जमीर के साथ है, ये जमीर और बी के साथ है। सादा जा है तो माना आना, जमीर के साथ आगे है तो पास आना। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम आए तुम्हारे पास। फिर जा बी, जा पास आए, बी के साथ हमने, हाँ, बी के साथ लाए भी हो जाता है, ठीक है। फिर पास लाए होगा, फिर पास आए नहीं जी। होगा, पास लाए होगा। जाकुम पास आए, जाकुम बी तुम्हारे पास लाए, यानी पास लाए। चाहे आप लिखें जाहू बी, उसके पास लाए। जाका बी, तेरे पास लाया। ठीक है। अब चूंकि यह कुम जमा मुजक्कर मुखातब का सीगा है ना, इसलिए जाकुम बी तुम्हारे पास लाए। अकेला जाकुम है ना, बी के बगैर है तो माना है तुम्हारे पास आए। जाकुम बी तुम्हारे पास लाए। ठीक है। जी मैम। फिर यहाँ बी का माना अलहदा से नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आपको सबक क्लियर है ना इकरा? जी मैम। चलिए एक बार आप भी इन आयात को पढ़ लीजिए ताकि मजीद आसानी हो जाए। ज़हाबत सयातुल अन्नी। इसका मतलब था बुराई गई मुझसे। ज़हाबल्लाहु बिनूरिहिम। अल्लाह ले गया उनका नूर। जाआ रजुलुम मिन अक्सल मदीनती। एक आदमी आया शहर के किनारे से। हम्म। जाअकुम मूसा। आए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम। गुड। जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति। लाए तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ेह निशानियां। जबरदस्त, माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अल्लाह मजीद फजील। अब ऐसा है, कुरान पाक से आपने लाजमन इस तरह से और मिसालें ढूंढनी है, ठीक है। लाजमी ढूंढ के तो आपने मुझे लाजमी शेयर करनी है। तो मुझे उम्मीद है जब आप कुरान पाक खोलेंगे ना, इस पॉइंट को सीखने के लिए आपको कितनी जगह पे ये चीज मिलेगी। हाँ, ये जो जहाबा जहाबा भी है ना, ये थोड़ा कम ही मिलेगा आपको, लेकिन जा वाला आपको ज्यादा मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आज का सबक सीखने के बाद आप कुरान पाक के मजीद कुछ नए और बहुत ज्यादा अल्फाज को सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम अजमाइन। अब आप बताइए, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर अगर नहीं है कोई सवाल तो फिर इजाजत दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।